Welcome to the Future Tech Spotlight online learning platform. So now we will see one by one all these operators how we can use in the pig environment. So what we require to do is now we will go for the Cloudera. Okay, and this is my grunt shell. तो ये grunt shell कैसे आया पहले तो हम वो देखेंगे. So I will close this operator and we will start one fresh Cloudera. ठीक है. Okay. So if you have any questions, students, you can always write in the chat box. I hope you have no issue up till now. Yes, if you have any question, you can write in the chat box, please. Okay, so this is your basic command prompt. Okay, now you want a grunt shell or you want a platform where you can execute your pig script. Okay, so the query command is pig-x local. Okay, so this is the command through which you will get your grunt shell. You can see this here. You are having the shell where you can execute your query. Control L. Here we are having this grunt shell. Okay, now fs hyphen ls. If you want to see the directory structure of the current environment, so my current environment is ls. My current environment is Linux. Okay, so I can see all the files in the pig environment. Okay, currently हमारे पास ये directory है. सारे ही जैसे लिनक्स के कमांड है वैसे ही grunt shell में उसके अपने कमांड्स है. ठीक है, तो हम वन बाय वन सारे ही कमांड्स देखेंगे कि कैसे वो जो grunt shell है वो रन होता है. ठीक है, so we will see this commands one by one. Okay, so now whenever you want to do any type of work, you required data for that. Okay, so data load करना वो सबसे पहला काम है हमारा. So data कैसे load होगा यहाँ पे, तो data load करने के लिए command है load command. ठीक है, तो load command हम देख सकते हैं. load command क्या करता है, it will get the data from the local environment and load in the pig variable. Okay, so यहाँ पे देखो load, then file name using function as field name. This is what the syntax of the load command. Okay, so now load query the underscore log.txt file. So here you require to give the whole path and then using any function as you require to give the field name, and it is assumed that the data is there in the table format with some delimiter. Okay, that is assumed. Okay, so यहाँ पे अगर हमको इसको लोड करना है तो कैसे लोड करेंगे, तो देखो हमने अभी क्या लोड किया है यहाँ पे. अभी हमने लोड किया है लोड होम क्लाउडेरा java.txt. ओके, तो java.txt कहाँ पे है अभी, तो दिस इज my java.txt. Java.txt is having roll number, first name, last name, and your subject. Okay, so or course you can say. ठीक है, तो ये आपके चार field है. As I told you, it is assumed that data is always in the form of tabular format and it is having some delimiter. Okay, so delimiter कौन सा लिया है यहाँ पे, so यहाँ पे query क्या है. ओके, grunt shell के लिए आपको यूज करना है pig-x local. This is the command through which you will get the grunt shell. Okay, and after getting grunt shell you require to give all the commands, whichever command you want to run. So the first command we are learning is load command, because without data we cannot do anything. We require a data. Okay, so as I told you, in the java.txt we are having 4 fields: roll number, first name, last name, and course. Okay, same way, and the data is delimited by the comma. Clear? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा लोड कमांड क्या कहता है, लोड देन फाइल नेम. फाइल नेम क्या है, this is my working directory. If you want to change the directory you can change, but you require to give the whole path through from
your working directory to whatever path you want to give. Then using function, तो function क्या है, peak storage. peak storage क्या है, function का नाम है, और डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, कॉमा डेलिमिटर से. Okay, then after you required to give a field name and data type. Okay, so my first field is roll number. तो मैंने यहाँ पे A1 लिखा है, आपको A1 नहीं लिखना है तो आप रोल नंबर भी लिख सकते हो. दिस इज जस्ट अ वेरिएबल. A2 फर्स्ट नेम नहीं लिखना है तो A2 भी लिख सकते हैं, फर्स्ट नेम भी लिख सकते हैं, देन लास्ट नेम एंड देन कोर्स. Now A1 is roll number in the form of integer, so colon integer data type I have provided. Then after A2 is first name, character array, string data is there, so I have given character array. Then last name is character array and course is also character array. ठीक है, so we required to execute this command on grunt shell. So a command is executed, but it seems that there is nothing done exactly. ठीक है, इंटरनली कुछ हुआ नहीं है ऐसा लग रहा है. ठीक है, क्यों ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी सिर्फ डेटा लोड हुआ है, एग्जैक्ट एग्जीक्यूशन और वेरिफिकेशन नहीं हुआ है वो चीज का. ठीक है, ए के अंदर अभी भी कुछ भी नहीं है. ठीक है, तो ए के अंदर रियल डेटा स्टोर करने के लिए कमांड है डम्प ए. सो अब जो प्रोसेस होगी वो रियल ये लोडिंग की प्रोसेस है. ठीक है, तो डेटा अभी लोड हुआ और वो डेटा में कितना रो है, 3. यहाँ पे दिख रहा है सबको, दिस आर द 3 रोज. क्लियर हुआ अभी तक? ठीक है. Now then after you can get the details about the data structure of whatever the variable you are having. Okay, this is just a variable. तो अभी जो हमें मिला है वो वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल ए. उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिस्क्राइब ए. तो उसका पूरा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा. तो स्ट्रक्चर क्या होगा, दैट फील्ड नेम एंड डेटा टाइप. ओके, तो फील्ड नेम आपको मिल रहा है यहाँ पे. ठीक है, लेट्स से सपोज आपको ये एम्प्लॉय डेटा जो है वो आपको डालना है. ठीक है, लोड करना है. तो इसके अंदर कौन कौन से डेटा रहेंगे, तो इसके अंदर हमारे पास है एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय एफ नेम, एल नेम, जॉब, मैनेजर, हायर डेट, सैलरी, कमीशन एंड डिपार्टमेंट कोड. सो दिस आर द 8-9 फील्ड्स आर देयर. ओके, एंड दिस वी रिक्वायर टू लोड ओवर हियर. तो जैसे मैंने बात किया A1, A2, A3 की जगह पे यू कैन गिव फील्ड नेम ऑल्सो. ये ऐसे फील्ड नेम भी दे सकते हैं. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करूँ बी से, ठीक है, तो हम बी से एग्जीक्यूट कर सकते हैं इसको. ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, डंप बी. क्यों डंप बी करना है, क्योंकि दैट इज द रियल कमांड कि जहाँ पे हमारा डेटा जो है वो क्या हो रहा है, लोड हो रहा है. क्लियर हुआ सबको ये? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमांड. जब भी आपको कुछ भी करना है सबसे पहले लोड करना है. ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपको लोड करना है. ठीक है, ओके, कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे. ठीक है, सो दिस वे वी कैन सी दिस structure of the given loaded data. Okay, now another command is cross command, cross join command. cross join command क्या करता है, cross join करेगा जो भी डेटा है आपका. जैसे हमारे पास है एक m और एक n डेटा. ठीक है, तो ये m के अंदर है ये डेटा और n के अंदर ये डेटा है. तो ज्वाइन कैसे होगा, पहली लाइन के साथ ये दोनों लाइन और दूसरी लाइन के साथ ये दोनों लाइन होगी. दैट इज व्हाट द ज्वाइन इज. ओके, तो वो नेचुरल ज्वाइन हम यहाँ पे देखेंगे कैसे होगा. ठीक है, तो वो नेचुरल ज्वाइन कैसे होगा, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहला हमारा काम क्या है, लोड. पहले डेटा होना चाहिए. ठीक है, डेटा इज ऑलवेज देयर इन द फाइल. इफ यू वांट ओनली नंबर 10 इन वेरिएबल ए, तो भी वो डेटा किस में होगा, फाइल में. ठीक है, if you want to add 2 numbers, so that 2 numbers must be there in the file. Clear, everything in the file. So यहाँ पे हम लोड करेंगे, लोड फाइल नेम यूजिंग पीक स्टोरेज कॉमा एज A1 इंटीजर, A2 इंटीजर. ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो कॉलम है इसलिए. ठीक है, तो ये A को हम लोड कर रहे हैं अभी. ठीक है, उसके बाद हमने ये 2 डेटा आ गया, अभी हम B को लोड करेंगे. ठीक है, तो B को लोड किया हमने यहाँ पे. ठीक है,
and then after we will give this command cross. तो कमांड का नाम क्या है? क्रॉस a comma b. वो क्या करेगा? क्रॉस a comma b will give you क्रॉस जॉइन. ठीक है, ओके, देयर इज नो ब्रैकेट ओवर हियर. ठीक है, क्रॉस a comma b, तो ये दोनों का क्रॉस जॉइन हो गया. अब हम देखेंगे डम्प रिजल्ट. ओके, सो रिजल्ट में क्या मिलेगा आपको? दोनों का क्रॉस जॉइन. देखो आपने दोनों का क्रॉस जॉइन आ रहा है. पहले डेटा के साथ भी दोनों और दूसरा डेटा के साथ भी दोनों फील्ड आपको मिलेंगे. ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी गेट थ्रू दिस. ओके, दूसरा है डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट में क्या होता है? इफ यू वांट अ डिस्टिंक्ट रो, सपोज सम डुप्लीकेट रोज आर देयर. ठीक है, तो लेट्स से हम एम के अंदर ही सब कुछ डुप्लीकेट रो कर देते हैं. ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी. कितनी बार डुप्लीकेट रो आ रही है अभी? तो एक ही चीज 3 बार रिपीट हो रही है. ठीक है, सेव. और इसी का हम क्या करेंगे? ए हमारा ऑलरेडी लोडेड है, पर हमें वापस लोड करना पड़ेगा बिकॉज वी हैव चेंज अवर डेटा. ओके, तो हम ए को वापस लोड करेंगे. ठीक है, सो लोड ए. तो यहाँ पे लोड ए आ गया. और कमांड है डिस्टिंक्ट ए. हमको कौन सा चाहिए? डुप्लीकेट जो है वो निकाल कर डेटा चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे मिल जाता है डम्प रिजल्ट. ठीक है, तो डंप रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा? ओनली यूनिक रोज. क्लियर हुआ? तो ऐसे आप बहुत सारे ऑपरेटर वी कैन यूज इन दिस. वी विल सी वन बाय वन दिस ऑपरेटर, एंड देन आफ्टर वी आर एबल टू कंबाइन दिस ऑपरेटर, we are able to combine this command, and then we can create one script. पहले तुम्हें जानना होगा कि कौन कौन से ऑपरेशंस हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, उसके बाद हम पूरा एक प्रोग्राम लिखने के इसमें होंगे. ठीक है, another one is filter command. Now when we are using this filter command, suppose you want to filter some data just like a where condition. Select star from employee where employee ID is less than, let's say, 2000. ठीक है, तो ऐसा कोई कमांड आपको देना है, ऐसा कोई फिल्टरिंग आपको करना है, तो दैट इज पॉसिबल विद द दिस कमांड. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमारे पास रोल नंबर है, इसके अंदर java.txt, this is java.txt file where we are having roll number 1, 9 and 12, but we required a row where the roll number is less than 9. ओके, तो रोल नंबर लेस देन 9 ग्रेटर देन 9 हो, ऐसा वाला डेटा अगर मुझे चाहिए तो कैसे मिलेगा? तो अगेन वी रिक्वायर टू डंप दिस फाइल. फाइल का नाम क्या है? java.txt. ठीक है, तो ये फाइल ए में आ गई है. और उसके बाद कमांड है फिल्टर. किसको फिल्टर करना है? ए को. कैसे फिल्टर करना है? बाय then condition. Now here you require to give all the operators, relational operator, whatever operator you want to use, less than, equal to, not equal to, जो भी हमने यहाँ पे अभी अभी देखा. ठीक है, ये सारे ऑपरेटर आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं. ठीक है, दिस आर द ऑपरेटर. ठीक है, तो ये ऑपरेटर हमने यहाँ पे यूज किया. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कैसे होगा ये. क्या है कमांड? क्या है? फिल्टर ए बाय कंडीशन. ठीक है, and then dump करना नहीं भूलना है because that is the real command you can say to execute the commands. okay, so देखो greater than 9 में सिर्फ एक ही आता है आपके पास, तो ये 12 is your row where the roll number is greater than 9. okay, so this is what our command. Then after, if you want to do some process for all the rows, okay, कुछ आपको काम करना है जो हर एक रो में रिफ्लेक्ट होना चाहिए. ठीक है, उसके लिए कमांड है फॉर ईच कमांड. ठीक है, तो फॉर ईच कमांड इज नथिंग बट इट विल वर्क लाइक अ फॉर लूप, एंड इट विल स्कैन वन बाय वन ईच एंड एवरी रो एंड परफॉर्म सम टास्क ऑन दैट रो. ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है कि सपोज मेरे पास यहाँ पे जो रोल नंबर है उसके अंदर मल्टीप्लाई बाय 10 कर देना है, तो हर एक के रोल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा. या फिर मेरे पास जो एम्प्लॉय टेबल है, वो एम्प्लॉय टेबल के अंदर जो सैलरी है उसके बेस पे मुझे कुछ बोनस कैलकुलेट करना है, तो वो हर एक रो के लिए करना होगा. सो दिस आर द कमांड विच वी रिक्वायर टू अप्लाई फॉर ईच एंड एवरी रो.
Okay, at that time we require to use for each command. Okay, so this is a kind of for loop you can say for your data. Okay, तो इसको हमने जावा एक को लोड किया यहाँ पे अभी, ठीक है, और उसके बाद हमें कमांड देना है फॉर ईच. फॉर ईच कमांड क्या करता है? फॉर ईच, हमेशा देखो कमांड के बाद क्या आएगा? योर इनपुट टेबल. जैसे फिल्टर ए, डिस्टिंक्ट ए, ठीक है, और उसके पहले हमने देखा था क्रॉस. तो क्रॉस में हमने क्या देखा था? क्रॉस में हमने देखा था कि ऑलवेज ऑफकोर्स क्रॉस जॉइन है तो दो टेबल के बीच में होगा, इसलिए हमने दो टेबल का नाम दिया है वहां पे, ठीक है. बट ऑलवेज आप देखोगे तो जब भी कोई कमांड होता है तो वो कौन से टेबल, कौन से रिलेशन के ऊपर वो कमांड को एग्जीक्यूट करना है, वो रिलेशन का नाम सबसे पहले आएगा, ठीक है. तो फॉर ईच ए जनरेट, क्या जनरेट करना है आपको? तो मुझे जनरेट करना है a1 मल्टीप्लाई बाई 10. व्हाट इज a1? a1 इज नथिंग बट अ फर्स्ट फील्ड ऑफ दिस टेबल. टेबल का नाम है java.txt, उसका जो पहला फील्ड है a1, उसको मल्टीप्लाई बाई 10 करना है, ठीक है. और कॉमा एज इट इज मुझे सेकेंड डेटा चाहिए. नाउ दिस विल वर्क फॉर all the rows. Let's say in this particular table you are having 10,000 row, it will work for 10,000 rows. Okay, so this particular detail is already there. तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, एंड डम रिजल्ट. ओके, सो देखो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है. आपका रोल नंबर क्या था? 1, 9 एंड 12. मैंने क्या किया है? मल्टीप्लाई बाई 10 एंड उसके साथ उसका फर्स्ट नेम, ठीक है. सो दैट वे यू कैन परफॉर्म एनी ऑपरेशन ऑन दिस. नाउ अभी आपको पता चलेगा कि वर्ड काउंट जो प्रॉब्लम हमने मैप रिड्यूस में किया था, दैट इज वेरी वेरी इजी इन पिग एनवायरनमेंट. just you can say a couple of line you require to write 4-5 lines and you will get the output. Okay, so that is that much easier this pig script is. Okay, so that we will see once we learn all this, then we will see. Okay, now suppose you want to do some grouping work. Okay, जैसे हमने अभी हाइव के अंदर भी ग्रुपिंग देखा था, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी हमें ग्रुपिंग करना है. तो ग्रुपिंग कैसे होगा? तो ग्रुपिंग करने के लिए हमारे पास कमांड है ग्रुप, और उसके बाद तुरंत किसके ऊपर ग्रुप करना है. जैसे फॉर ईच तो किसके ऊपर करना है? फिल्टर तो किसके, कौन से रिलेशन पे करना है. वैसे ही ग्रुप ए बाय कॉलम नेम, किस कौन सी कॉलम पे ग्रुपिंग करना है, ठीक है. तो ग्रुपिंग जैसे हम एसक्यूएल में देख रहे थे, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे ग्रुप का है, दैट वी विल यूज. ओके, सो यहाँ पे हम सेम कॉन्सेप्ट देंगे. यहाँ पे A4 का मतलब होता है कोर्स, तो हम ग्रुपिंग किसके ऊपर कर रहे हैं? कोर्स के अंदर, ठीक है. तो अभी तक जो हमें मिल रहा है ये टप्पल है. कैसे पता चला टप्पल है? कोई बताएगा मुझे? यस, हाउ डू यू नो दैट द आउटपुट इज इन द फॉर्म ऑफ टप्पल? Yes, very good, Nisha. Because of this bracket. Okay. Now we will see how we can work on this group. Okay. तो यहाँ पे हम ग्रुपिंग ग्रुप ए बाय कोर्स. ओके, ये A4 की जगह पे आप जब लोड कर रहे थे तब आप फील्ड का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है. एंड डम रिजल्ट. ओके, सो दिस इज गिविंग यू व्हाट. कौन बताएगा ये क्या है? अब ये डेटा क्या है? कौन बताएगा? यस, there are 3-4 complex data type. No, this is not pig. The whole thing is pig you can say, but dictionary no. हमने कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में देखा था मैप, हमने देखा था एटम, हमने देखा था टपल, हम नहीं, दिस इज नॉट टपल. हमने देखा था बैग. यस, कौन बताएगा? कलेक्शन ऑफ टपल, दिस इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ टपल. यस शुभम, वेरी गुड, दिस इज बैग. यस निशा, ठीक है. तो ये बैग है, वो कैसे पता चला? क्योंकि करली ब्रैकेट है. समझ में आया? हमने देखा था ना, करली ब्रैकेट है तो बैग होगा वो. हाउ टू रिकॉग्नाइज दैट द गिवन डेटा इज बैग? तो वो आपको ये करली ब्रैकेट से पता चलेगा. हमने ग्रुपिंग किसके ऊपर किया था? कोर्स के ऊपर. कोर्स कौन सा था? तो जावा ये, हाँ,
हाँ, यहाँ पे all data.txt फाइल हमने रखी है। नहीं, हमने कौन सा लिया था, हमने ये फाइल एग्जीक्यूट नहीं की एक्चुअली। हमने जावा एक्स वाली जो फाइल है वही ए हम यूज कर रहे हैं अभी, और जावा वाली फाइल में सिर्फ जावा करके था, इसलिए हमें समझ में नहीं आया। हम ऑल ऑल डेटा वाली फाइल करते हैं। ऑल डेटा फाइल क्या है देखते हैं पहले। ओपन, ऑल डेटा टीएक्सटी। ठीक है, ऑल डेटा टीएक्सटी में क्या है, बीडीए और जावा ऐसे दो ग्रुप हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, तो यू वी विल गेट मल्टीपल ग्रुप्स। तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ग्रुपिंग हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो वी विल एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट, और हम चारों ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हैं साथ में। डंप रिजल्ट। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो सबसे पहले बीडीए का ग्रुपिंग हुआ है, और यहाँ पे ये पूरा बैग आपको मिला है। बैग इज नथिंग बट योर collection of tuple, and then after the second one is java, grouping on java course, और यहाँ पे आपको वो दूसरा पूरा बैग मिला है, that is collection of all the tuples under group java। क्लियर हुआ सबको ये? तो क्या देना है, एक लाइन देना है सिर्फ, ग्रुप ए बाय कॉलम नेम। कॉलम नेम कैन बी एनीथिंग, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैंने ए लिखा है तो आपको ए ही लिखना है, इट कैन बी योर नेम। ये तो वेरिएबल है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ? अभी तक कुछ प्रॉब्लम है? यस एनीवन? अभी जो काम के लिए हम दो दो तीन तीन जावा फाइल लिख रहे थे और इधर उधर जाके कंपाइलेशन करके एग्जीक्यूट कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं करना है, एक दो लाइन में ही सब कुछ काम हो जाएगा। इसीलिए पीक इज द हायर लेवल लैंग्वेज विच एनीवन कैन वर्क ऑन इट, लाइक अगर वो उसका प्रोग्रामर होना जरूरी नहीं है। ठीक है, कोई भी ये सीख सकता है। ठीक है, ओके, सो लेट्स गो further. Another command is co-group command, which is not there with SQL also. Okay, यहाँ पे जैसे हमारे पास group command है, that is there with the SQL। यहाँ पे for each command है, तो हमारा select वही करता है पूरा। ठीक है, then after ये filter command है, तो हमारा where clause है SQL के अंदर। distinct command is also there in SQL, cross command is also there, but this co-group command is not there। okay, co-group command क्या करता है, multiple relations जो है उसका ग्रुपिंग आपको देता जाएगा। ठीक है, तो आप कॉमा करके कितने भी रिलेशंस जो है उसके उसका ग्रुपिंग देख सकते हो। ठीक है, तो सपोज आई एम हैविंग टू फाइल्स, वन इज java.txt, तो java.txt में क्या है, ये वाली फाइल है। ठीक है, इसमें रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड course। Then after one is Hadoop file where I am having again roll number, first name, last name and course। ठीक है, so these are the two files I am having, and I will give grouping on this file also, and I will give grouping on this file also। ठीक है, दो अलग अलग रिलेशन में ग्रुपिंग हो रहा है। ठीक है, so that is possible with the pig command, and the command is what, co group command। okay, तो क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, पहले हम जावा एक्स को लोड करेंगे, जावा डॉट टी को लोड करेंगे, फिर हडूप फाइल को लोड करेंगे, और फिर the main command is co group A by column name, comma B by column name। कौन सा रिलेशन कौन से कॉलम के ऊपर ग्रुपिंग करना है, कौन से रिलेशन पे कौन से कॉलम पे ग्रुपिंग करना है, ऐसे करके कॉमा करके आप कितने भी ग्रुप दे सकते हो। मैक्सिमम 127 ग्रुप यू कैन गिव एट अ टाइम। ओके, सो दैट इज पॉसिबल विद द पीक एनवायरमेंट। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, सबसे पहले हम जावा टीएक्सटी लोड करेंगे, एंड देन आफ्टर सेकेंड वन, ठीक है, जिसमें हडूप फाइल लोड हुआ है, और फिर हम को ग्रुप देखेंगे। ठीक है, ओके, एंड देन डम्प सीजी। ठीक है, तो देखो ये जो पर्टिकुलर डेटा है वो कहाँ से आ रहा है, एक फाइल से आ रहा है, और ये डेटा कहाँ से आ रहा है, दूसरी फाइल से आ रहा है।
Now, it is possible that in one file we are having multiple groups? ऐसा भी तो हो सकता है ना. अभी तो क्या था कि यहाँ पे हमारे पास जावा के अंदर सेम ही कोर्स था, हडूप के अंदर सेम ही कोर्स था, इसलिए दो ही दिख रहा है. बट सपोज यहाँ पे दो अलग अलग होते, जावा और बीडीए लेट्स से, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 3 ग्रुप दिखते हमको. ठीक है, सो बेस्ड ऑन कोर्स इट विल गिव, बिकॉज हमने क्या दिया है कमांड. Command is co-group relation A by this field and relation this by this field. तो वो field के ऊपर वो क्या करेगा, आपको grouping दे. Then let's move further. Another command is limit command. Now what this limit command will do? Suppose limit command is nothing but a number of rows you can say. Okay, तो number of rows के लिए हमारे पास command था row ID. ठीक है, तो वो रो आईडी के हिसाब से यहाँ पे हमें लिमिट A2 कर दिया. लिमिट हर कमांड के बाद आपको तुरंत क्या देना है, रिलेशन. सो लिमिट A2, 2 का मतलब क्या हुआ, लिमिटेड टू 2 रोज. तो अगर आपके जैसे कि हमने हडूप में देखा कितने हैं, 1 2 3 4 4 आपके हडूप में 4 रो है. ठीक है, और वो किसमें है, बी रिलेशन के अंदर है, बी वेरिएबल के अंदर पूरा ये हडूप का डेटा है. ठीक है, तो उसका अगर हम लिमिट देखते हैं तो क्या आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आप कर देते हैं बी, तो लिमिट B2, तो वो क्या देगा आपको, तो सिर्फ आपको दो ही जो फर्स्ट 2 रोज है वो ही देगा. ठीक है, समझ आया, फर्स्ट 2 रोज यहाँ पे देख सकते हो आप, फर्स्ट 2 रोज. So that way you can limit a number of rows. Okay, sometimes what happen, you required output but you required limited output just to check whether the output is okay or not. So that time you can give you may give this command, limit command. Clear? Then after, as usual, we are having order by command. Order by command for what? For sorting, for ascending and descending both. Okay, so if you want to, ascending is by default, and if you want to do descending sorting, then DESC is the command you required to give. Okay, so whatever the relation is, order and then command, और उसके बाद क्या आएगा, relation by column में. ठीक है, तो हमेशा ऐसा ही आता है, command then relation by column में. ठीक है, तो और उसके जिस हिसाब से आपको करना है वैसे आप कर सकते हो. ठीक है, तो सबसे पहले हमें ऐसा ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे ऑर्डर बाय ना हो, या फिर हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं तो समझ में आएगा. जैसे कि हडूप कमांड है, हडूप का फाइल है, तो उसमें रोल नंबर जो है वो सारे क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है, इसको डिसेंडिंग कर देते हैं. ठीक है, तो DESC लगा देते हैं इसके ऊपर, और A4 मेरा कोर्स है, और B जो है वो सेकेंड हडूप वाला फाइल है. ठीक है, तो इसको देखते हैं. एक सेकेंड. ठीक है, ओके, तो ये देखो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया 16 15 11 6. ठीक है, तो ऐसे आप ऑर्डर बाय कर सकते हो. ये सारे ही कमांड को आप एक साथ इकट्ठा लिख के .pik फाइल बना सकते हो और स्क्रिप्ट को लोड कर सकते हो. दैट वी विल सी आफ्टरवर्ड्स. पहले हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे काम हो सकता है. ठीक है, then after we are having split command. Now this is very useful command, you can say. It will split your whole file into number of different you can say different data set or different variable, उसमें वो चला जाएगा. ठीक है, तो split, let's say अपने पास command है a, split a into x if a1 is less than or equal to 2 and y if a1 is greater than 2. तो समझ में आया यहाँ पे क्या हो रहा है. ठीक है, A1 ग्रेट लेस देन 2, इसका मतलब क्या हुआ, पहला वाला रोल नंबर की बात हो रही है. ठीक है, ए आपका क्या है, ए आपका है java.txt, इसमें रोल नंबर की बात हो रही है 1912. ए है, A1 आपका रोल नंबर है. ठीक है, सो स्प्लिट ए रिलेशन ए इनटू, तो ये कितने पार्ट में स्प्लिट हो रहा है, एक्स और वाई दो पार्ट में स्प्लिट हो रहा है. एक्स में कौन सा डेटा जाएगा, एक्स इफ A1 लेस देन और इक्वल टू 2. अगर आपका रोल नंबर लेस देन और इक्वल टू 2 है तो एक्स में जाएगा, और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 है तो वो वाई में जाएगा.
Now here you don't have to give this data to some variable. देखो हर बार हमने क्या किया है, जो भी हमने कमांड दिया उसका कुछ वेरिएबल में हमने उसको सेव किया है, ठीक है। हर बार देखो हमने कुछ ना कुछ वेरिएबल में इसको सेव किया है, हर बार रिजल्ट दिया है, ठीक है। बट इन स्प्लिट कमांड यू कैन नॉट गिव दिस, ओके, बिकॉज ऑटोमेटिकली इट विल गो टू एक्स एंड वाई. Already you have given this two variable. This can be any variable, this can be your name also, this is just a variable. But ये variable कब काम करेगा, जब आप dump command दोगे. That time it will go for the verification of this particular condition and then the particular data will be loaded into this variable. Clear हुआ सबको ये split command कैसे काम करेगा? So any type of relational operator, any type of operator you can use here, ठीक है. So this is your command, split command. So now we will go do dump x and dump y. Clear? देखो दो डेटा y में आया है, क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन 2 था. आप यहाँ पे देख सकते हो ग्रेटर देन 2. और यहाँ पे जावा में 1 9 12 ग्रेटर देन 2 में क्या आएगा, 9 एंड 12. तो यहाँ पे देखो 9 एंड 12 में वो जो है वो y में जा रहा है, क्योंकि y में ही कंडीशन थी ग्रेटर देन 2. और बाकी का डेटा किस में गया? सो बाकी का डेटा गया है, वो दोनों कमांड मैंने एक्चुअली फटाफट रन कर दिए तो वो नहीं दिख रहा है. ये डंप एक्स और उसका फिर आउटपुट आएगा, ये रहा, ठीक है. क्लियर हुआ सबको ये स्प्लिट कमांड? एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ स्टूडेंट्स? नो क्वेश्चन? तो समझ में आ रहा है सबको या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा? हाँ, से एटलीस्ट यस और नो. ओके. स्प्लिट क्या करता है? स्प्लिट will divide your whole file into number of variables. Okay, earlier what happened, whatever the command we are executing, that command will give some output, and that output we are storing somewhere in the variable. Okay, but here what happened, that whatever the relation we are having in the form of file, that we are splitting in two variables. Okay, and for that we have given condition also, like split a into a को हमें किस में स्प्लिट करना है, into x if a1 is less than 2. तो a1 is what your roll number. तो अगर रोल नंबर आपका लेस देन और इक्वल टू 2 है तो वो x वाले फाइल में जाएगा, और अगर a1 is greater than 2 है तो वो आपके y में जाएगा. तो y if this condition and x if this condition. This way it will split the whole relation A. So now the A is already, we have given storage x and y, उसमें वो store करेगा, and that's why we don't have to give any variable over here to store this data, because this is already stored in the x and y as given. Okay, and that's why we require to do dump x and y. Why dump x and y? Because this is the real command. At this point of view, the verification and loading process done. Okay, ये कमांड तो रन हो जाता है पर उसका एक्चुअल एग्जीक्यूशन एंड एक्चुअल लोडिंग जो होगा वो ये कमांड पे होगा, डंप एक्स. ओके, तो डंप एक्स क्या करेगा, पिग एनवायरनमेंट में वो डेटा स्टोर करेगा, एंड डंप वाई उस पिग एनवायरनमेंट में डेटा वाई वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर करेगा, ठीक है. और फिर जब आपको डेटा मिलेगा तो जितने भी डेटा a1 लेस देन इक्वल टू 2 है वो सारा x में जाएगा और बाकी का डेटा y में जाएगा, ठीक है. क्लियर हुआ निशा? इज इट क्लियर टू यू निशा? ओके, ठीक है. तो ऐसे हमारे पास दो वेरिएबल आ चुके हैं x एंड y. अब आपको सपोज यूनियन वेरिएबल देना है, ठीक है. तो व्हाट यूनियन विल डू इन द एसक्यूएल, ठीक है. तो यूनियन क्या करता है, दो वेरिएबल को दो रिलेशन को मर्ज कर देता है, ठीक है. डुप्लीकेट भी आएगा तो आएगा, उसके अंदर पहला टेबल और उसके नीचे दूसरे टेबल की रो आ जाएगी. दैट इज व्हाट द यूनियन in the SQL. The same we can do with the pig environment also. Union x comma y.
तो यूनियन एक्स कॉमा वाई क्या करेगा, ठीक है, डम्प z। अब आपको क्या मिलेगा, पूरा का पूरा फाइल मिलेगा। पहले क्या था, पहले हमने कमांड दिया यूनियन एक्स कॉमा वाई, तो एक्स में क्या था, ओनली दिस फर्स्ट रो, और वाई में क्या था, बाकी की 2 रो, ठीक है। अब आपने क्या किया, यूनियन एक्स कॉमा वाई और उसको z में डाल दिया। जब हमने z को डंप z किया तो क्या मिला आपको, द होल टेबल। क्लियर एवरीवन? So that way we can use union command also. Okay. Now suppose you want to use aggregate function. So मुझे लगता है aggregate functions पे हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ से थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी चालू होगा और फिर हम स्क्रिप्ट पे जाएंगे हाउ वी कैन राइट द होल प्रोग्राम। ओके, सो ये बेसिक एनवायरनमेंट कैसे काम करता है, बेसिक डेटा टाइप क्या है, टेबल कैसे लोड करना है और बेसिक कमांड कैसे देना है, वो हमने आज देखा पीक के अंदर। यू रिक्वायर टू स्टार्ट ओजी सर्विस, जैसे आपने जू कीपर सर्विस किया है ना, वैसे आपको ओजी स्टार्ट करना है, ठीक है। जिसका भी पिग नहीं चल रहा है उनको ओजी स्टार्ट करना है, ठीक है। और जिनका हाइव नहीं चल रहा है उनको जू कीपर स्टार्ट करके रखना है, ठीक है। तो अब हमारे सर्विसेज कौन कौन सी हो जाएगी, HDFS, हाइव, यार्न, जू कीपर एंड ओजी, ठीक है। Thank you, everyone.